अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सॉन्ग्स ऑफ सेल्स। और आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, वी हैव पीपल फ्रॉम द सीएस इंडस्ट्री जो कि आपको फर्दर इंसाइट्स देंगे एज टू हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। और जो बेसिकली स्टूडेंट का मेन मसला रहता है कि यार इंडस्ट्री चीज़ें बहुत ज़्यादा मांगती है, हमें वो आती नहीं है, तो हाउ टू ब्रिज दैट गैप एंड व्हाट is the industry actually looking for in a probable employee. So for that, we first have Mr. Ijaz Ali. He's the senior business HR business partner in Geritech, and Mr. Osama. He is the HR lead of culture and operations in Geritech. So, sir, first of all, thank you very much for being here. And so, first question, किसी भी industry के हवाले से बात होती है तो so what is Geritech and what is the aim that they bring to the Pakistan IT industry? Yeah, please. Yeah, please. Thank you very much, first of all, for FAST University, specifically for organizing such an amazing event. I think these sort of event desperately needed in order to bridge the gap between the academia and the industry. Currently, अगर हम देख रहे हैं तो there's a huge gap between these two sectors. अगर आप but coming back to your question, how Geritech is contributing to the tech ecosystem. Like basically, we started off in 2008. Two graduates from local university, like from NID University, with electronics background. Rather than having a computer degree, they after graduation they decided to build something great out of this country, where as a nation we'll feel proud of. With this vision, this company was formed. So company जब formation हुई with this vision के इस पाकिस्तान से कुछ amazing चीज़ यहाँ से build कर रही है. We started with the project base. But by 2009, we realized within a year we realized that the aspiration we were setting for कि if in order to build something great, वो आप project base में आप नहीं लेके चल सकते. We started with the project base, but later on in 2009 we realized and we stopped working on projects and we decided to work on products. Right now there are 9 companies in the group. We are a group of company and 9 group of companies like and we are one of the biggest product based house in Pakistan. In Pakistan, generally most of the companies, 95% companies work on the project base. It's the easiest approach. You get the project, you work on the project, you ship the project, job done. But when it comes to the product, this is again it's a long game. It's a tiring game where you have to wait for a long period of time. And we waited almost 4 years in order to be on the right scale. In 2009, first product launch. By 2013, we went on an aggressive part जहाँ पे company growth start हुई and we started our growth started taking off from there onward. Right now भी हमारे पास there are more than 800 employees working for our company. We are serving global market. All 8 companies in our group, they are registered outside Pakistan. We have customer base global. So I don't see any example, any company in Pakistan working on this massive scales of products and serving global customers, working on SaaS-based platforms. So again, and this is again, we are moving toward the right direction. जो हमने सेट की थी कि हमने कुछ amazing build करना है, and we are inching towards that. Inshallah, in few more years, we'll see something amazing will be on the global scale from our end. Yeah. मिस्टर उसामा, मैं आपसे पूछूंगा कि जब भी एक गेरिटेक जैसी कंपनी की बात होती है तो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे यू नीड फ्रेश ग्रेजुएट्स फ्रॉम द पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज टू गो टू ग्रेजुएट एंड देन वर्क इन द इंडस्ट्री. तो अब आपको लगता है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज या पाकिस्तान का एकेडमिया इस लेवल पे है टू ब्रिंग कॉम्पिटेंट ग्रेजुएट्स? देखिए, इस चीज़ को मैं इस तरीके से एडअप करूँगा कि डेफिनेटली यूनिवर्सिटीज़ पूरा ट्राई अप कर रही हैं कि वो कम्पीट कर सकें उस क्राइटेरिया को जो क्राइटेरिया एक कंपनी रिक्वायर कर रही होती हैं, जिसके लिए उनको एक फ्रेश ग्रेजुएट को रखने के बाद, बिकॉज इन दिस मार्केट, टुडेज मार्केट, कंपटीशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि एवरी कंपनी नीड्स अ प्लग इन प्ले एम्प्लॉय. ठीक है कि वो आए और फॉरन काम पे लग जाए, 1-2 महीने में वो स्टार्ट हो जाए और वर्किंग और अपना आउटपुट देना शुरू करे. बट स्टिल इन Geritech, एज यू सेड, एज यू आस्क्ड अर्लियर, के आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो हमारा जो एक कंट्रीब्यूशन है ऑन टॉप ऑफ इट जो सबसे बड़ा है, जिसमें हमारी अपनी एक एकेडमीज़ है. उन एकेडमीज़ के थ्रू हम फ्रेश ग्रेजुएट्स को उठाते हैं, उसके बाद उनको ट्रेन करते हैं और उनको बताते हैं कि एक्चुअल मार्केट में हो क्या रहा है.
और उस ट्रेनिंग के दौरान भी हम उनको पूरा एक प्रोग्राम सिखाते हैं और प्रोग्राम के बाद हम उन बच्चों को ऑनबोर्ड करते हैं अपने पास। तो उससे उनके डबल फायदे हैं। एक तो ये कि जब वो वहाँ से निकलते हैं पहले तो उनको पता ही नहीं होता कि जाना किधर है, करना क्या है, तो वो हम उनको राइट डायरेक्शन देते हैं और राइट डायरेक्शन के साथ हम उनको राइट पे स्केल के साथ अपने पास ऑफर भी प्लेस करते हैं और उन्हीं बच्चों को ऑनबोर्ड करते हैं। तो ये सिर्फ रिलेटेड टू ओनली वन फील्ड नहीं है कि अगर मैं कहता हूँ कि इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, नॉट लाइक दैट। It's related to marketing as well. It's related to designing as well. It's related to cloud hosting as well. तो ये सारी चीज़ों से relevant जितनी भी हमें लगता है ये चीज़ें, तो job fairs yes they are doing their part, but still we believe कि इधर एक जो बीच में gap है उस gap को हम fill करने के लिए एक bridge create कर रहे हैं through GetItech. And even I can add on top of it what Osama mentioned कि I see there's a huge gap between what you're learning in university and what actually is happening in the industry. When a graduate is graduating from the university, it's been 13 years I'm working in the industry, 9 years with the tech industry. What I saw in the tech industry, though it's in the infancy stage, अगर 2008-2009 से boom start हुआ है टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान में और लास्ट 4-5 साल में और ज़्यादा अवेयरनेस आई है, but what we see that there is a lack of counseling. बच्चों को नहीं आइडिया होता कि ग्रेजुएशन के बाद उनको किस डायरेक्शन में जाना है। आपने ग्रेजुएशन कर ली, व्हाई यू डिड दिस ग्रेजुएशन, ठीक है। एक तो सबसे बड़ा मसला ये आता है कि उनको क्लियर नहीं होता कि किस डायरेक्शन में जाना होता। तो व्हाट हैपेंड, यू ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, यू अप्लाई हियर एंड देयर, फ्रॉम वेयरएवर यू गेट द अपॉर्चुनिटी, आप जंप इन कर जाते हो, फिर आप स्ट्रगल करते रहते हो मार्केट के अंदर। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि व्हाट द करिकुलम व्हिच इज यूनिवर्सिटी आर टीचिंग ना, आई मस्ट से देयर आर वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान जो शायद थोड़ा अपने आप को उन्होंने अब जाके अप टू डेट उन्होंने करना शुरू किया, जहाँ पे वो थोड़ा कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्री के हिसाब से बिल्ड करें, बट स्टिल वी सी देयर अ लॉट ऑफ पोटेंशियल और काफ़ी काम करना पड़ेगा फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम एकेडमिया साइड वहाँ पे, कि आपको अपना कोर्स जो है उसको ड्रास्टिकली चेंज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कम्पीट विद द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। अब अभी भी आप देखें तो आपका जो कोर्स आउटलाइन जो कोर्स मटीरियल है इट्स वे ओल्ड, 90s में जो पढ़ाया जाता था, 2000 में पढ़ाया जाता है, आज भी वही कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। दुनिया, आई थिंक वर्ल्ड इज मूविंग टू नेक्स्ट लेवल, बट स्टिल आई थिंक देयर इज अ गैप व्हिच आई थिंक इज फिलिंग फास्ट, और काफ़ी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो टेक साइड पर भी हैं जो अभी काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रही हैं, बट आई थिंक दोज टू मेन फैक्टर इज अगेन एकेडमिया, फिर काउंसलिंग, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आप जो स्टूडेंट निकलता है ना वो सिर्फ एकेडमिया पढ़ के निकलता है, मतलब उसने कोर्स पढ़ा होता है, उसने कोई इंटर्नशिप नहीं की होती है, उसने शॉर्ट एक्सपीरियंस नहीं किया, तो बिल्कुल फ्रेश होता है। लाइक विज यू गो टू द ग्लोबल मार्केट, आप पाकिस्तान से बाहर जाएं तो वहाँ पे स्टूडेंट्स दे टेक एक्स्ट्रा टाइम जहाँ पे वो प्रैक्टिकल लर्निंग भी कर रहे होते हैं, कहीं इंटर्नशिप करते हैं, पार्ट टाइम इंटर्नशिप कर रहे होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि यू गो फॉर अ फुल टाइम जॉब बट पार्ट टाइम जॉब, बट आई एम सेइंग दैट यू शुड गेट अ प्रैक्टिकल एक्सपोजर वाइल यू आर स्टडिंग। आपके पास 1-1.5 महीने का बीच में जो गैप आता है, आप किसी टेक हाउस के साथ, स्टार्टअप के साथ आप लग जाएं, आप इंटर्नशिप करें, अपना 1-1.5 महीने का टाइम को यूज़ करें एंड बी क्लियर जब अपनी ग्रेजुएशन में भी करें किस डायरेक्शन में जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द फोर्थ इंपॉर्टेंट एलिमेंट। बच्चा जब ग्रेजुएशन कर रहा है ना तो उसको आई थिंक यू नो बेटर देन मी, यूर फ्रॉम इंजीनियरिंग साइड, आपको आइडिया होगा कि 1-1.5 साल में आपको आइडिया हो जाता है कि एक्चुअली टेक काम किस तरह कर रहा है। आपको हर बेसिक लैंग्वेजेस के बारे में आप पढ़ चुके होते हैं, नाउ यू गेट टू नो कि यार मुझे डायरेक्शन किस तरफ जाना है। So it's better that students should know or decide maybe after 1.5 year कि यार अच्छा मुझे वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना है, मुझे मोबाइल की तरफ जाना है, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की तरफ जाना है, मुझे ब्लॉकचेन की तरफ जाना है, मुझे एआई की तरफ जाना है, किस डायरेक्शन में फिर उसको परस्यू करें। आई थिंक that's what needed स्टूडेंट का जो एडवाइस चाह रहे हो। It reminded me the question I usually ask to the new joinees in our company, that when you started your career path, was it your own decision, was it your friend's decision, was it your or you got influenced by your friends or your parents, or is it a roller coaster ride for you? Right. So it comes like that. हर दफा यही होता है क्योंकि we don't have a counseling, या हमारे पास कोई करियर काउंसलिंग का एलिमेंट है ही नहीं। बाकायदा डिपार्टमेंट्स होते हैं बाहर, तो मतलब वो निकलने से पहले बच्चों को बता रहे होते हैं ये करना है या आपका पोटेंशियल क्या है। स्पोर्ट्स में वो खुद डालते हैं बच्चों को, हमारे यहाँ तो इस तरह की कोई चीज़ ही नहीं है। सो मतलब आप दोनों HR साइड से बिलोंग करते हैं, सो एक बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के पास आता है कि आपकी जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ हैं
they are pulling you in a different direction. वो theoretically आपको sound करना, आपको technically sound करना उनका वो काम है. And when you come in the industry, it's like all practical. It's very different than what we are taught in the classes. Right. So when you are hiring a possible employees, so what are the qualities or what are the things that you want to see in them? कि यार अगर ये बंदे के ये qualities हैं तो इसको रख लो, इसको जाने नहीं देना. I think इसमें good question. It's important चीज़ जो होती है ना, somebody who's a fresh graduate and अगर वो आ रहा भी होता है market के अंदर, so what I see companies see कि भाई generally आपका IQ level कितना strong है. Second important चीज़ जो है IQ के साथ तो चलो वो आप लाते हो अपने साथ, लेकिन आपकी attitude कितना अच्छा है. The important thing is you bring your attitude. You're just fresh graduate. आपका ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, वो भी कनेक्टेड नहीं होती इंडस्ट्री के साथ, ठीक है ना. आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको नहीं अंदाजा आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, बट आप रैंडमली चले जाते हो, आप इंटरव्यू दे रहे हो. आप जॉब फेयर में देखेंगे तो लोग डिफरेंट जगह में इंटरव्यू, फ्रंट एंड में इंटरव्यू दे रहे होंगे, कोई मार्केटिंग के लिए इंटरव्यू दे रहा होगा, कोई कंटेंट राइटर के लिए इंटरव्यू दे रहा होगा, इंजीनियर हो भाई आप. एंड यू नीड टू गो टू रियल फैक्टर ना, कोई डेटा साइंस की तरफ जा रहा होगा. बट जो हम देख रहे होते हैं, हम देखते हैं कि एटीट्यूड कितना आपका अच्छा है. इफ यू हैव अ राइट एटीट्यूड, we can train you, because attitude is something you bring in, aptitude is something which we can teach you. ये अब बेसिकली हम जरूर देखते हैं एक डिजायर्ड कैंडिडेट के अंदर कि एक तो उसका बेसलाइन कितना, थोड़ा बेसलाइन भी उसका चलता है ना, we can train them, and right attitude is something. And third important चीज होती है वो हम देखते हैं कल्चरल अलाइनमेंट, कि आप हमारी कंपनी के साथ कितना कल्चरली अलाइंड हैं. ठीक है, अगर अलाइंड नहीं है देन इट डजंट मैटर आप कितने अच्छे ग्रेजुएट क्यों ना हो, you don't factor that. For example, do you think events like Dev Day is a step in the right direction to bridge the industry academia gap? जो event हमारा अभी हो रहा है developers day, you've been here for I guess 8 बजे से चल रहा है event. Yeah, so I've been here from 9 year, since 9 year. Yeah. So do you think events like this are a step in the right direction? Yeah, it is. मैं ये कहूँगा कि किसी चीज़ की तरफ कोशिश करना एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ होती है, और फास्ट वो चीज़ कर रहा है, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी कर रही होती हैं, बट आप लोगों की तरफ से एक डेव डे है और डेव डे चलता आ रहा है आप लोगों का एक, आई थिंक इट्स अ लेगेसी नाउ, और वो चलती आ रही है. तो या इट्स अ गुड इनिशिएटिव नहीं कह सकते क्योंकि ये चलती आ रही है चीज़, लेकिन स्टिल पार्ट अपना प्ले कर रहे हैं, कोशिश है. लेकिन जो इजाज़ वाली चीज़ है इसके अंदर वो एलिमेंट की बहुत ज़रूरत है. लास्ट टाइम आई बिलीव हम जब आए थे डेफ पे, जब हम लोग आए थे तो हमने ये किया था कि हमने एक बाकायदा एक सेक्शन बनाया था जहाँ पे हम स्टूडेंट को लेके बैठ जाते थे, और वहाँ पे इजाज़ ही, आई थिंक यू वर देयर एंड ही वाज काउंसलिंग द स्टूडेंट कि यार चाहते क्या हो, करना क्या चाहते हो ज़िंदगी में, क्या करना है, ठीक है, क्या गोल्स हैं तुम्हारे, आगे क्या करना चाहते हो. उसके बाद फिर उसकी वैल्यूज़ पता लगती हैं. जब वैल्यूज़ पता लगती है तो आपको पता चलता है कि यार डीप डाउन ये बंदा किस तरफ जाना चाहता है. तो ये चीज़ एक एलिमेंट मुझे लगता है कि आप लोगों की तरफ से भी अगर ये वाली चीज़ निकल के बाहर की तरफ आएगी तो इट वुड बी अ राइट डायरेक्शन फॉर अ स्टूडेंट्स कि यार हमें अगर लेट्स से ये चीज़ होती है तो अभी स्टूडेंट क्या करता है, वो हर जगह जा रहा होता है, हर किसी को टैप कर रहा होता है कि यार मैंने सिस्टम्स को भी देख लेना है लेट्स से, या मैंने उसको भी देखना है जो एक और कंपनी है, या मैंने थर्ड कंपनी एक और बैठी है उसको भी देखना है, फोलियो आया हुआ है उसको भी देखना है, 3-4 कंपनीज को देखना है, जो भी बड़े 4-5 नाम है. अगर उसका डायरेक्शन क्लियर होगा, उसको पता होगा मैंने किधर जाना है, कि यार मशीन लर्निंग के ऊपर कौन सी कंपनी इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है, या गैरीटेक कर रही है, मैंने गैरीटेक पे ही जाना है और मैंने वहीं खड़े होना है, मुझे पता है मैंने क्या बात करनी. ये एलिमेंट एक मिसिंग है. तो आई थिंक ये एलिमेंट अगर एडअप हो जाए सो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड हो जाएगा प्रोसेस. इवन आई थिंक आप लोगों ने बहुत डिसेंट एफर्ट किया है. आई एम रियली इम्प्रेस्ड द वे दिस ईयर दिस इज हैपनिंग अराउंड. I think it's a good step. जितना आप इसको और enhancement करेंगे, again, it's a good that you bring students to the career section area. Usually अगर आप जाते हैं ना किसी यूनिवर्सिटी में जॉब फेयर्स करना चाहते हैं, we often see that there's a lack of interest from the student side. ठीक है, the companies are coming, university is giving them platform. You guys are doing your 200%, 500% कि आप लोग इतना amazing event को pull off कर रहे होते हो. But it's very important that students should come. अगर even अगर आप ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट हो, ठीक है, जनरली व्हाट हैपन दैट न्यू स्टूडेंट होता है ना, यार जो लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं, मैं कोर्स पढ़ लेता हूँ या मैं असाइनमेंट अपना कर लेता हूँ, जॉब फेयर में क्या करना है यार, वहाँ तो वैसी गपशप होगी, रश भी बहुत होगी, पीपल ऑफन डोंट कम like यूनिवर्सिटी, like where I think more than 1,000 students are studying right now. I think fast के अंदर जैसे ज़्यादा होंगे, but the audience you see in the career fair, though it's good, but it should be more than that. एंड अगेन ये शायद स्टूडेंट्स को देखना चाहिए कि भाई आप किताब से निकल के भी आपको बाहर आना है.
यू इन द फर्स्ट ईयर यू नीड टू एक्सप्लोर, आप जाएं क्योंकि आपने कभी इंटरव्यू नहीं दिया होता है, आपको नहीं पता इंटरेक्शन किस तरह करना है, कंपनी क्या करती है, टेक इंडस्ट्रीज किस तरह काम करती है, You get a flavor of what's happening. एग्जैक्टली यू गो, इवन देयर आर 20 स्टॉल्स, यू शुड विजिट एवरी स्टॉल, जाओ बात करो, आपका एंजाइटी कम होगी, आप 2 स्टॉल पे जाएंगे आपको एंजाइटी होगी, आप तीसरे पे जाएंगे एंजाइटी थोड़ी कम होगी, चौथे पे जाएंगे, 5वें पे जाएंगे, एंड आप इस तरह आप 2-3 जॉब फिर अटेंड करेंगे, डेफिनेटली आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और जो मैंने पहले बात की ना कि आपको डायरेक्शन मिल जाएगी कि यार करना क्या है मैंने। This is not only for the third or fourth year students, for the first or second year वाले भी। अभी आप पहले सेमेस्टर में हो ना, यू डू एक्सप्लोर ना, इट्स नथिंग गोइंग आउट ऑफ योर पॉकेट, Right. ठीक है ना। एंड आई थिंक दूसरा ये है कि आप असाइनमेंट तो करते रहेंगे भाई, आपके पास पूरा दिन है, आपके पास पूरा हफ्ता है, पूरा सेमेस्टर है, असाइनमेंट चलता रहेगा, क्विज़ेस भी चलते रहेंगे, लेकिन जॉब फेयर शायद ऐसी इवेंट यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी इतनी एफर्ट कर रही होती है और इंडस्ट्री को ला रही होती है आपसे कनेक्ट करने के लिए, तो स्टूडेंट को डेफिनेटली आना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, चाहे वो सेकंड ईयर का हो, चाहे फाइनल ईयर का हो। मेरे ख्याल से परसेप्शन नहीं होता कि यार सिर्फ फाइनल ईयर्स के लिए, दिस इज फॉर एवरीबॉडी, इवन स्टूडेंट्स शुड कम फॉर दीस इवेंट्स। आई थिंक दिस शुड बी अ टैगलाइन, कोई क्लियर टैगलाइन होनी चाहिए कि अपने केजेस से बाहर निकलो। Open for all. यस So sir, एक मैं बार बार आप लोग क्वेश्चन कि यू आर फ्रॉम द एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट बेसिकली जो एक एम्प्लॉय को एज अ बिजनेस नहीं एज अ पर्सन देखता है एचआर डिपार्टमेंट। बेसिकली दे वांट टू सी हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट टू द कंपनी अपार्ट फ्रॉम देयर टेक्निकल स्किल्स। सो आप लोग उस चीज़ की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम लोग एज अ स्टूडेंट कम्युनिटी हम लोग भी हैं, हमारा फोकस ये होता है यार कोर्सेज निकालो, ग्रेड्स उठा लो, नौकरी वोकरी हो जाएगी, इंटरव्यूज दे देंगे, कर लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। सो व्हाई इज दिस कि हम लोग को प्रोग्राम ही इस तरह कर दिया गया है कि वी ओनली रन आफ्टर नंबर्स और द ग्रेड्स, के बस ग्रेड हो, नौकरी हो, शौक पैशन तो हम लोग सीधा कबाड़ में डाल देते हैं। ठीक, अगर मेरे पैशन वाली जॉब मुझे 45 ऑफर कर रही है और कोई दूसरी जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद मुझे 90 ऑफर कर रही है, मैं साफ बोलूंगा मैं 90 वाली पे जाऊंगा कि यार ऑब्वियसली पे स्केल अच्छा है, एडवांस कर लेंगे, शौक खुद ही बिल्ड हो जाएगा। आई बिलीव दिस इज द फ्लॉ ऑफ द सिस्टम, दिस इज द सिस्टम फ्लॉ। इसमें यूनिवर्सिटी हाँ एक चीज हो सकती है। अच्छा चलें आप मुझे बताएं, जैसे आप स्टूडेंट व्हाट डिड यू से? आई एम स्टूडेंट, थर्ड ईयर स्टूडेंट। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं आपके यहाँ पे कोई इस तरह की क्लास होती है जिसको हम कह सकें कि इट्स अ पर्सनल डेवलपमेंट स्टडी मेथड? नो सर, नहीं होती। सो मैं ये समझता हूँ कि वो बैरियर तो किसी ने नहीं बनाया कि मतलब यार वाई इफ यू आर मेकिंग इंजीनियर, इफ यू आर मेकिंग अ बिजनेस ग्रेड, सो वाई यू आर नॉट ट्रेनिंग हिम फॉर हिमसेल्फ, जिससे वो अपनी सेल्फ स्टीम को बूस्ट कर सके। उसकी सेल्फ स्टीम को तो कोई देख ही नहीं रहा ना, वो सिर्फ ये देख रहा है उसका दिमाग कितना चलता है। ठीक है यार, दिमाग चलता है, बट सेल्फ स्टीम मैटर्स। अगर आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर पर्सनल डेवलपमेंट स्टडी मेथड का सिस्टम लेके आ जाएंगे, सो पीपल विल अंडरस्टैंड कि यार सिर्फ ग्रेड्स लेना या पढ़ाई करना और रिजल्ट्स निकालना ही मकसद नहीं है, ज़िंदगी का बहुत सारे मकसद हैं। तो मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे एक टीचर होते थे मिस्टर वॉरेन, ही वॉज 70 years old इन मलेशिया। तो वो टीचर जो है वो हफ्ते में एक क्लास होती थी उनकी, और सबसे बड़ी क्लास होती थी। वो विजिटिंग फैकल्टी थे, यूनिवर्सिटी के भी नहीं थे, उनके सेमिनार्स हुआ करते थे, वो ओकेजनली आते थे तो पूरी क्लास अटेंड करते थे उनकी। वो टीचर जो अपने असाइनमेंट्स देते थे ना, वो सबसे डिफरेंट असाइनमेंट होते थे जो पूरी यूनिवर्सिटी में कोई टीचर नहीं देता था। वो कहते थे यार बीच साइड पे जाओ, वहाँ जाके एक दिन गुजारो या एक रात गुजारो और अपनी सेल्फ रियलाइजेशन देखो कि तुम वहाँ पे क्या फील करते हो, कितने टाइम में तुम क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो। हमारे सारे टास्क उससे रेलेवेंट होते थे। तो स्टूडेंट्स के अंदर जो मैं एक चीज़ फील करता हूँ जो सबसे बड़ा लैक है ना, वो ये है कि वो अपने आप को नहीं जानते। ठीक है, दे नो अबाउट बुक्स, दे नो अबाउट जॉब्स, दे नो अबाउट country, they know about politics, but they don't know about themselves. Right. So this is the missing point, missing element. I think rightly Sama mentioned counseling is badly missing. स्टूडेंट को शायद हमें यूनिवर्सिटी के ना नंबर सिखाए जा रहे होते हैं कि जीपीए के पीछे जाओ, इट डज मैटर, अच्छे ग्रेड्स लेके आ जाओ। इन रियल वर्ल्ड जब आप इंडस्ट्री में आएंगे ना, नोबडी सी योर जीपीए, इट डजंट मैटर। इवन मैं तो हमेशा स्टूडेंट्स को ये भी कहता हूँ, दो काम फॉर द जॉब, even degree doesn't matter, the industry you're into, you're into tech industry now, world is moving towards nano certifications चलते हैं भाई, आपकी practical learnings पे चल रहे हैं। degree even doesn't matter, even you're not graduate ना, if you have a right skills in tech industry, even you have a low GPA, it doesn't matter until अगर आपका दिमाग तेज चलता है ना, and you have clear direction, वो बड़ा जरूरी है भाई। उसके बगैर you are ending nowhere। ठीक है ना, दुनिया में आप सक्सेसफुल लोग देखेंगे ना जो टेक इंडस्ट्री, अगर आप किसी को मेंटोर या गाइड समझते हैं,
अगर आप उनकी हिस्ट्री निकाल के थे ना, दे आर नॉट ग्रेजुएट, इवन नॉट ग्रेजुएट। आप किसी एग्जांपल भी ले, मार्क जकरबर्ग की ले लें, किसी बड़े के नाम एग्जांपल ले, दे आर नॉट इवन ग्रेजुएट, बट दे हैड अ विजन, ठीक है, दे हैड अ डायरेक्शन, और उन्होंने डायरेक्शन, खाली विजन नहीं होना, डायरेक्शन नहीं होना, सिर्फ फॉलो भी करना होता, दे रियली फॉलोड दैट एज वेल। तो आई थिंक वो जरूरी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी को डेफिनेटली चाहिए कि शायद हो सकता है कोई ऐसे मे बी गेस्ट स्पीकर सेशंस कर लें यूनिवर्सिटीज के अंदर, वेयर यू ब्रिंग people from the industry, हर कोर्स में मैंडेटरी करते हैं, like what we used to see in our university, हमारे यहाँ हर कोर्स में मैंडेटरी तक है, you need to, every professor is supposed to ask or arrange one industry expert to come from the industry और वाकई स्टूडेंट्स को थोड़ा गाइड करे, तो वहाँ से फिर आपको थोड़ा गैप फिलअप होगा, फिर आपके इवेंट्स इस तरह हो रहे होते हैं, तो ये these can work around. Right, sir. With that note, I will guess we bring it to an end. Thank you very much for your time, sir. Thank you so It's much. been a pleasure to have you guys. Yeah. Thank you so much. Thank you very much. I think it's a wonderful event. I would say keep it up, and I would request again students के जरूर जाएं इस तरह के events के अंदर. It's good for your learning. Right, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Take care.